precise discussion on ABO blood group pattern followed by RH factor, how significantly it decides a safe blood transfusion, and a given population will have the 8 blood groups considering both ABO blood group system as well as RH factor. So today we will begin the discussion with RH incompatibility. Especially RH factor is very significant in our day-to-day life while to perform that transfusion experiment in any medical trauma cases, but especially in a gene pool, random mating, what we call marriage. जेनेटिक्स में मैरिज को डिफाइन किया गया है एज अ मोड ऑफ रैंडम मेटिंग. जीन पूल में सो कॉल्ड एक फीमेल और मेल बॉडी अपने रिस्पेक्टिव डिफरेंशियल जीनोटाइप के साथ रिकम्बाइन करेंगे और सो कॉल्ड सक्सेसिव जनरेशन में जिस नए जीनोटाइप को ऑफस्प्रिंग के फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे. तो देयर आर मेनी compatibilities and incompatibilities with respect to different traits of the body. शरीर के इतने सारे biological traits हैं, उन सब से संबंधित उस combination crossing over के दौरान कुछ good eugenic traits यानी good genes as well as bad genes का एक reshuffling होता है. ठीक है, तो that's a mechanism in nature to bring variation, जिसको हम recombination कहते हैं. क्या कहते हैं? Now the question is कि इसी marriage physical customized act को human society run by some social rules, we are having a code of conduct talking strictly on natural basis. Reproduction जो है वो एक biological significant process है to maintain the continuity of the species. But while we talk about the reproductive behavior and related aspects to reproduction, in human beings it is being restricted, governed by some code of conduct, because we belong to some society where that physical sexual interaction is being customized. Now the question is, suppose knowingly unknowingly any couple happens to enter into such relationship. Now what's the gene pool gives the backup, whether it allows or not on the basis of blood group inheritance. So while taking the reference of RH factor, we'll start up with introductory paragraph statement कि presently in medical health sector, while counseling any couple whether to enter the marriage relation based on, यहां मैं क्या लिखूंगा, RH compatibility. इनकॉम्पैटिबिलिटी नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि मतलब कहीं ना कहीं मेल हो रहा है तो अलाउ करना उस बेसिस पे कि प्रेजेंटली इन मेडिकल हेल्थ सेक्टर व्हाइल काउंसलिंग एनी कपल whether to enter the marriage relation based on RH compatibility, depends on following genotypic combinations. मतलब किस कॉम्बिनेशन को काउंसलिंग में अलाउ करे और किसको इनकॉम्पैटिबल बोल के ना करे, वो इससे डिसाइड होता है. एंड दोज आर रिस्पेक्टिवली वेयर द मेल एंड फीमेल with 4 possible combination, whatever the blood group AB of blood group मायने नहीं रखता, इसमें RH factor है where male is RH negative, female is also RH negative, male is RH positive, female is also RH positive,
Clear? But what is the controversial and taken to be can't be taken granted? That is RH positive male and RH negative female. So this would be the incompatible match on genetic background. हालांकि प्रैक्टिकली सक्सेस रेट कितना है कि इस कॉम्बिनेशन में भी अननोइंगली मैरिजेस हो रहे हैं and successfully they had their children without any such problem, what we are going to later discuss by the end of the discussion on RH factor, that is erythroblastosis fetalis, one of the congenital disorder the so called offspring, the newborn is going to suffer from if their parents are genetically incompatible with such a pattern of combination. Clear? सबको आ रहा है ये समझ में statement? Now how, let us prove it. Let's go through the demonstration. Basically demonstration of what? RH incompatibility कि होता क्या है इसमें. तो हम डे टू डे कैजुअल एग्जांपल लेते हैं पहले कि वही प्रेजेंटेशन. ए टाइप डोनर, लेकिन साथ ही साथ ये इस पे RH भी फैक्टर मौजूद है. यानी A पॉजिटिव हो गया. ये क्या हो गया? A पॉजिटिव डोनर. ए एंटीजन तो था ही, साथ में आर फैक्टर भी मौजूद है, RH फैक्टर, तो ए पॉजिटिव. रेस्ट प्रीवियस क्लास में भी आपने देखा था विथ बीटा एंटीबॉडी, विथ these are beta antibodies. Clear? Supposed to donate blood to A negative for the first time. It has been the first attempt. Before understanding this incompatibility, हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि क्या दिक्कत है RH फैक्टर ना मैच करने का. अगेन A type, but this time A negative. Recipient तो यहां एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगा, एंड निदर RH, क्योंकि द अटेम्प्ट इज फर्स्ट टाइम. ब्लड यहां डोनेट हुआ है, इसने इसको ब्लड दिया है. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्ट क्या है इसका? नो एग्लूटिनेशन, यानी हीमोलाइसिस एब्सेंट. हीमोलाइसिस एब्सेंट. बट व्हाट वुड हैव हैपन? क्या हुआ होगा यहां पर?
note the body of recipient stimulated oblique triggered with immune response. आई डू होप यू माइट हैव गॉट दैट, क्योंकि बॉडी ने पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट पे एक्सपीरियंस किया RH फैक्टर जो कि इसके शरीर में नहीं था. तो दैट इवेंट, हालांकि उसका कोई मेडिकल फ्लॉ सामने नहीं आया है, कोई कॉज, मेडिकल कॉज या कोई ड्रॉबैक फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट द बॉडी ऑफ रेसिपिएंट स्टिमुलेटेड ऑब्लिक ट्रिगर्ड विद इम्यून रिस्पॉन्स and that's simply AMIR, antibody mediated immune response, और रिजल्टेंट, उसका परिणाम क्या रहा होगा? रिजल्टेंट IgG टाइप anti-RH एंटीबॉडी. एंटी-RH मतलब ऐसा एंटीबॉडी बना जो कि RH के खिलाफ इसके शरीर में तैयार है वो अंदर. फिर लेटर ऑन सक्सेसिव इन कमिंग फ्यूचर अगेन अनलकीली a second attempt has been done prior without any medical checkup. That's a poor monitoring, case of poor monitoring. फिर से ट्रांसफ्यूशन हुआ और इस बार भी अब मैं डायरेक्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ होगा रेसिपिएंट के बॉडी में, है ना. अब जो मैं क्या बना रहा हूं यहां पर, बॉडी रेसिपिएंट का है, लेकिन रेसिपिएंट बॉडी में हमेशा क्लॉटिंग, क्लंपिंग किसके आरबीसी की होती है? डोनर. लास्ट क्लास भी हमने यही देखा था. रेसिपिएंट बॉडी तो रेसिपिएंट बॉडी के में जो है, जो एंटी-RH बना हुआ था, एंटी-RH वो कुछ इसी शेप के रहे होंगे. सीधी क्लंपिंग, यानी इस शेप के एंटीबॉडीज प्लाज्मा में दिस वाज योर एंटी-RH. तो रेसिपिएंट बॉडी में आरबीसी ऑफ डोनर क्लम्प्ड सेकेंड अटेम्प्ट में, यानी एग्लूटिनेशन. क्या हुआ होगा? एग्लूटिनेशन. सबको ये डायग्राम प्रेजेंटेशन समझ में आया? फर्स्ट अटेम्प्ट ब्लड गया, ऐसा दिया, पहली बार कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड टाइम एग्लूटिनेशन इसलिए होगा क्योंकि दिस टाइम द बॉडी इज वेल ट्रिगर्ड, एक्सपीरियंस्ड, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज. यही सब मैं कंटेंट्स लिखवा चुका हूं, आज ये प्रेजेंटेशन था. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी विच इज गोइंग टू अकर मोर और लेस ड्यू टू दैट पुअर मॉनिटरिंग फॉलोड बाय मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन. लेकिन ये तो मैन मेड कंडीशन है, लेकिन नेचर में एक अपने आप
जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है और सेम सिचुएशन जनरेट होता है ना, विद इन दी मैटरनल बॉडी by the end of pregnancy, by the end of. So what's that relation of RH incompatibility with having a child, a newborn with a congenital disease called erythroblastosis fetalis? मतलब वो ग्रास रूट रीजन RH incompatibility, अब उसको हम साबित करेंगे। सबको पहले ये समझ में आया एवरीवन? क्योंकि बनाया तो ए नेगेटिव ए पॉजिटिव है कि रेसिपिएंट बॉडी लिखा है तो उसमें तो ए नेगेटिव ब्लड था, उस आरबीसी को मैंने बनाया ही नहीं है क्योंकि वो क्लंप नहीं होगा। क्लंप कौन होगा? डोनर का आरबीसी, और डोनर का आरबीसी रेसिपिएंट बॉडी में, और रेसिपिएंट का प्लाज्मा बनाया है। अब ये देख देख के हर चीज लेबल करने की जरूरत नहीं, कुछ लॉजिक्स खुद के भी क्लियर होना चाहिए। प्लाज्मा ऑफ रेसिपिएंट बॉडी एंड आरबीसी ऑफ डोनर गेट क्लम्प्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रीफॉर्म्ड सेकंड टाइम है ना एंटी आरएच ड्यू टू एएमआईआर रिस्पॉन्स। अगर मैं इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं तो जीन पूल में जो है सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, इसलिए इंडियंस जो है हर कंडीशन में खुश रहते हैं बिकॉज ऑलवेज दे आर पॉजिटिव। एंड द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी पॉजिटिव, रेयरेस्ट ए बी पॉजिटिव। नाउ ये तो एक फैक्ट है, बट इन अ जीन पूल among Indians, chance of inheritance है ना, what happens, but in a gene pool among Indians, chance of inheritance of blood group in offspring is 72% from paternal side, irrespective of बॉय और अ गर्ल, क्योंकि ये कोई सेक्स लिंक्ड ट्रेट तो है नहीं। होने वाला बच्चा लड़का हो या लड़की हो, जो चांसेस ऑफ ब्लड ग्रुप ट्रांसफर होने का है, इंडियन पॉपुलेशन में क्या देखा है कि 72% पैटर्नल और बाकी 28%
मदर, यस, इवन 78% तक देखा गया, मतलब चांसेस कि फादर का ब्लड जो है ब्लड ग्रुप होने वाले बच्चे में पास होता है। इफ देयर आर केस ऑफ 100 प्रेगनेंसी टेकन, तो उसमें से 70-75 बच्चे ऐसे होंगे जिनमें ब्लड ग्रुप किसका आएगा, फादर का आएगा, और 25% एवरेज चांस है मदर के ब्लड ग्रुप आने का। इसलिए तो हिंदी फिल्म का डायलॉग है, तेरे रगों में मेरा खून बह रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। I know, so all these dialogues have come from scientific events and facts which are happening around us. So if I take this डेटा, ये डेटा उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ये डेटा सिर्फ इसलिए है जस्ट टू जस्टिफाई कि so in such case whatever blood group A, B, ABO, it is the RH factor tendency which is going to decide such situation medically। जो abnormality anomaly generate होगा बच्चे में, उसके पीछे RH factor जिम्मेदार है। तो अगर ऐसा ये फैक्ट डेटा अगर हम थोड़ी देर के लिए सही मान लें, तो चांसेस ऑफ दैट इनकॉम्पैटिबिलिटी जेनेटिक काउंसलिंग में इस तरह के मैरिजेस को नकार देना, ना एंटर करने का सलाह देना, क्यों? क्योंकि चांसेस इज मोर, 75% की डेफिनेटली बच्चे में आएगा प्रॉब्लम, एंड दैट्स टू फ्रॉम द सक्सेसिव सेकंड चाइल्ड, नॉट द फर्स्ट चाइल्ड। तो रीजनिंग पार्ट है, उसको हम अलग से मैं बताऊंगा, लेकिन अभी अभी जो बात सामने आया है तो ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो अब इसमें क्या होगा, सपोज एनी सच कपल अननोइंगली, लेट अस टेक अ प्रैक्टिकल सिचुएशन कि जानबूझकर नहीं, अननोइंगली ऐसे मैरिजेस हो जाते हैं क्योंकि कुंडलियां ज्यादा मिलाई जाती है, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। अब देखो आप वो सारे गुण कैसे अब गुण हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। सो केस वन, कि सच अ कपल प्लान टू अटेम्प्ट फॉर देयर फर्स्ट child. So what is expected? So the lady experiencing the first pregnancy after that marriage relationship happens to undergo the pregnancy, and throughout the gestation the mother being RH negative, ठीक है, थ्रू आउट। और इसको ऐसे बनाने का कारण है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैटरनल एंड फीटल ब्लड आर सेपरेटेड, दे डजंट मिक्स, इसलिए बाहर बनाना जरूरी है ऐसे। दिस इज मियर प्रेजेंटेशन, एंड डेफिनेटली द बॉडी डजंट हैव प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, वही केस वन, ठीक है। बट द चाइल्ड टर्न आउट टू डिराइव द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, सो RH positive. So what are the observations? What are the observations? The first pregnancy go normally without any anomaly, because maternal and fetal blood
does not mixes. एक तो मिक्स ना होना, और मोर ओवर mother body deprive of preformed antibodies. Preformed antibodies. लेकिन यहीं के यहीं देखिए, ये तो मैं आपको एक थ्योरेटिकल सिचुएशन टॉपिक को पढ़ाते हुए जस्टिफाई करते हुए क्वेश्चन ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन है ये, बट मेडिकल ग्राउंड्स पे जाए, इवन इट इज ऑब्जर्व्ड कि फर्स्ट केस में भी प्रॉब्लम हो सकता है. सो व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? सी अ मेडिकल कनेक्शन. और प्रैक्टिकली सोचिए कि ये सब कुछ नेचुरली हो रहा है, नॉट अंडर मेडिकल सुपरविजन. क्योंकि अगर मेडिकल सुपरविजन में होता तो फिर प्रायर चेकअप्स होते, डॉक्टर पहले ये सब चीजें एश्योर कर लेते सीरोलॉजिकल टेस्ट से, और सो कॉल्ड कपल को सजेस्ट करते कि बिफोर अटेम्प्टिंग प्रेगनेंसी व्हाट स्टेप शुड बी टेकन. आ रही मेरी बात समझ में? तो पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सेप्शन गूगली की फर्स्ट केस में ही बच्चे को दिक्कत हो सकती थी, बशर्ते मेडिकल कनेक्शन क्या है? If the lady would have experienced है ना RH factor exposure before marriage in her previous life due to any medical trauma. शादी से पहले कभी भी किसी कारण से टाइफाइड हो गया था, कुछ और दिक्कतें हो गई थी, कुछ ऑपरेशन हुआ होगा, एनीमिया हो गया था, है ना, बॉटल खून चढ़ा जल्दबाजी में, है ना, कि किन कंडीशंस में हो सकता है? वही फर्स्ट अटेम्प्ट जो वहां लिखा हुआ है, एक्सपोजर हो गया होगा, और प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ये जो मैंने यहां अभी ऐसा बनाया, साथ में मुझे ये भी डायग्राम बनाना चाहिए फिर, एंटी-RH. सी हाउ द थिंग्स कोइंसिडेंटली गो ऑन. सबको आ रही मेरी बात समझ में? तो आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये है एक्चुअल मेडिकल साइंस. इसका पीएमटी से अब कोई लेना देना नहीं है. सबको मेरी बात आ रही समझ में? देयर इज अ क्लास डिफरेंस ऑफ लर्निंग. अभी अभी आप जो देखो, एक होता है थ्योरी, पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, ऐसा है, और एक होता है प्रैक्टिकलिटी. सबको आ रही मेरी बात समझ में? थिंग्स आर कोइंसिडेंस. मैं क्या कह रहा हूं, प्रैक्टिकली सोचो. ये सब आज हम जान रहे हैं बोल के, जब पता नहीं था, और ऐसे मैरिजेस हो जाते थे, पहले ही बच्चा डेथ हो गया, फिर दूसरा भी हो गया, बच्चा हमेशा जो है स्टिल बर्थ हो जाता है. तो चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या कहता है ना, प्री नेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर्स, लोगों को अवेयर करना, जानकारी देना, क्या है, क्या कारण है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, वही है ना चैप्टर, वही तो सब लिखा हुआ है. एम आई राइट और नॉट? क्यों? क्योंकि द सर्वे रिपोर्ट एट द ग्राउंड लेवल रिवील्स that India like country developing where the peoples are with many myths and misconceptions. तो घर में क्या होगा? where India like country where often females are mostly blamed for being childless and other anomalies of giving birth. क्योंकि दिमाग में तो यही ना कि पूरा बच्चा तो जो है फीमेल के बॉडी में डेवलप होगा, तो कोई दिक्कत है वहीं से आना है और कहीं से आ ही नहीं सकता. जबकि ये दिक्कत भी किसने ग्रास रूट लेवल पे जनरेट कर रखा है? सबको आ रहा है समझ में? तो these are some of the social issues which are taken as a stigma. रिमेन्स टैबू. तो जबरदस्ती लेडी डायन है तो बच्चा, अब मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, मतलब दिस इज एक्चुअली द सिनेरियो इन द सोसाइटी कि क्या है, मतलब जो, एम आई राइट और नॉट? तो थोड़ा मतलब उसको ऐसे सोचें आप, मतलब प्रैक्टिकल चीजें अलग है और थ्योरी हम पढ़ते अपने तरीके से समझने के लिए, ऐसा ऐसा है. सो द फर्स्ट चाइल्ड could also be happen to
एनकाउंटर दैट सेम प्रॉब्लम, जिसको मैं सेकंड केस बना के आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी के अकॉर्डिंगली, बट प्रैक्टिकली मेडिकल कनेक्शन ये है कि इवन the problem could arise if the lady would have experienced RH factor exposure before marriage in her previous life due to any medical trauma. एक्सीडेंट हो गया था, ब्लड दिया गया, कुछ भी सर्जरी हुआ था, कुछ भी हुआ होगा और उस समय भी वही ध्यान नहीं दिया, हो गया, घटना होना था, हो गया, ठीक है ना। और गांव में तो ऐसी है, शादी ऐसी हो जाती है, हो गया शादी, है ना, पटेल पटेल शादी नहीं नहीं मतलब तो फाइनली पहला ही बच्चे को दिक्कत आ गई, जो जिस बात को हम पढ़ने आ रहे हैं। तो फिलहाल ये एक साइड बाय लूप एंड पे मैंने बात समझाया, सबको ये क्लियर हो गया। कमिंग बैक टू दिस सिचुएशन कि हम तो एक बहुत नॉर्मल सिचुएशन लेके चलते हैं कि पहले बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, द रीजन इज अंदर ये है, दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि ये सिचुएशन है। बट वेयर द ट्विस्ट कम्स, by the end of pregnancy, followed by parturition, followed by parturition। तो मैं चाहे वो सर्जिकली बर्थ ले या फिर कैजुअल ट्रेडिशनल पार्चुरेशन एक्ट, फिजिकल एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग आउट, जैसे भी बर्थ ले, क्या होगा, रप्चर ऑफ प्लेसेंटा, देयर बाय, है ना, देयर बाय मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल ब्लड। क्योंकि साइंटिफिकली कोई भी सर्जिकल टेक्निक नहीं है कि उस मिक्सिंग को रोका जा सके, चाहे वो सर्जिकली कट करके या फिर वॉट एवर तरीके से, हल्का सा जो वहां पर टूट फूट होना चालू हो चुका होता है, रप्चर होना है ना, डिग्रेड होके ये वाइब्रेट होके टूटेगा वो, तो वो जो थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाता है, ब्लड मिक्सिंग हो जाती है, दैट्स एनफ टू ट्रिगर। और यू नेवर नो आरएच एंटीजन कितना स्ट्रांग है, क्योंकि लास्ट डे मैंने स्यूडो अलील्स की जो कॉम्बिनेशन बताया था वो उसी बात को जस्टिफाई करने के लिए, एवरीवन सबको आ रहा है समझ में, क्योंकि बहुत कितना है। और हो सकता है 15 दिन बाद ही मदर को, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताऊंगा, क्यों एनसीईआरटी में लिखा है इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी द मदर इज गिवन एन एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन। क्या दिया जाता है, बोले जरूरत क्या है इमीडिएटली प्रेगनेंसी मतलब खत्म होने के बाद, वो कितना स्ट्रॉन्ग एंटीजन है और वो मदर के बॉडी को कितने स्ट्रांगली जल्दी से जल्दी स्टिमुलेट कर देगा। हो सकता है 3 महीने बाद स्टिमुलेट हो, 15 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, या कुछ घंटों में आती उसी दिन भर 2 दिन के अंदर हो जाए। तो यार दिस आर द मेडिकल सिचुएशंस, हेंस सब कुछ सर्वे स्टडी करके चीजें प्रोटोकॉल्स कहते बनाया जाता है ट्रीटमेंट देने का, एंड टेकिंग सर्टेन मेजर्स टू डील एनी केस ऑफ मेडिकल ट्रॉमा। तो आज साइंस डेवलप है, आज ये सब हम जानते हैं, लेकिन एक्चुअल टॉपिक को समझने के लिए आप ये सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि मेडिकल साइंस अभी कुछ नहीं जानता क्या करना है, और लेट इट बी नेचुरल, तो क्या होगा, तब तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम है। एम आई राइट और नॉट? तो ठीक है, ये आपने ऐसा स्टेटमेंट आया, और ये था वो डेंजर साइन कि पहला बच्चे को इसलिए क्योंकि अब ये फिजिकली डिटैच हो चुका है, बच्चा एक अपना हेल्दी बर्थ ले चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मदर के बॉडी में एक बोलते ना, इट हैज सीडेड द प्रॉब्लम, आगे चल के प्रॉब्लम का बीज डाल के चला गया बाय दैट एक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल ब्लड। यस और नो एवरीवन? तो ये पहले आपने अगर लिख लिया हो, सब बना लिया, देन आई मूव टू दैट पार्ट। खत्म, ये पहली प्रेगनेंसी नॉर्मल बर्थ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट केस। इट इज लाइक सिंपली नेचर में अगर मैनिपुलेटेड इंसानी हस्तक्षेप से जो गलतियां पुअर मॉनिटरिंग होती है, ठीक वो चीज नेचर में हो गया अपने आप, सेम इवेंट है, लेकिन हम टॉपिक कुछ अलग डिस्कस कर रहे हैं।
Case 2. Same couple attempt for second child, है ना. Case 2, same couple attempt for second child. So after a gap of at least 2 to 3 years, they plan to have a second child in their life. And again, they were unaware of such event, क्योंकि ये सब चीज एक नेचुरल कंडीशन में हो गया. आज भी गांव तो छोड़ो, इंटीरियर आसपास शहर में या अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ही, मतलब ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. आखिरी आखिरी में जाके क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी डॉक्टर्स दिखा के और चीजों को वर्कआउट करके अभी भी हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आ रहा है समझ में. मतलब कोई है कि जरूरत क्या है, बस सब कुछ ठीक है, नॉर्मल चल रहा है थिंग्स. तो पहले बच्चा नॉर्मली हो गया और ये सारे प्रॉब्लम अंदर क्रिएट हुआ. कुछ समय बाद अगेन, prior not counseling any doctor, or they plan to have their second issue. So this time I have made the fetus to be taken a 360 rotation. हमेशा ऐसा ही हो जरूरी नहीं है. So that's the breech baby, and this is the actual position of taking that natural way of traditional birth of parturition, and now where the fetal head, ठीक है, have a stimulation on the presoreceptors on the cervical wall on the. तो यही सब हम पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक पार्चुरेशन, विच आर बीइंग टेकन इन 3 स्टेप्स, है ना. इट्स फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्या कहते हैं उसे हम. हालांकि एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाते हुए बात में समझा तो चुका था, लेकिन while we will go through the chapter, we will end up the topic with that discussion. Okay, so this is the status, and again that chance factor of 72% again वो dominant रहा, and this time again female being with RH negative blood, and the fetus being RH positive. So now comes the role of placenta. Placenta तो एक ट्रांसप्लेसेंटल बैरियर बना के रखता है, जिससे अगेन मिक्सिंग नहीं होना चाहिए. But still the problem arise. But this time what happens? The mother body is not only Rh negative, but with some preformed antibodies. IgG type, and which can cross the placenta.
ठीक है, वो एंटीआरएच प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स आर immunologically triggered mother body avails anti-RH being made up of smallest immunoglobulin G can cross the placenta causes the antigen antibody reaction called agglutination, clumping of fetal RBC. Clumping of fetal RBC. अगेन इसमें एक मेडिकल सिचुएशन कि पहले बच्चा में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन सेकंड बच्चे में भी प्रॉब्लम नहीं. क्वेश्चन बनेगा ना, a case of RH incompatibility where the female had the first child normally but through the second attempt again had a unexpectedly normal child because. अब क्या आंसर दोगे? देखो, एक होता है ट्रेडिशनल पढ़ने का तरीका, पढ़े जा रहे हैं, याद होता जा रहा है. ये जो चीज है ये आपको सब पता है, मतलब आपको कोई पहली बार आप ये टॉपिक नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्लेंडिंग होना चाहिए. ट्राई टू आंसर इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, ये तो हो रहा है क्योंकि अभी हमें उस कंडीशन को समझना था. आई हैव टू डिफाइन इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. लेकिन मैंने साथ में क्या क्वेश्चन पुटअप किया कि पहला बच्चा हुआ, नॉर्मल हुआ, एक्सपेक्टेड था. थोड़ी देर के लिए ये तो भूल ही जाए आप, ये तो मैंने एक अलग से लूप लाइन कंडीशन बताया. बट ऐसे अनएक्सपेक्टेडली सेकंड चाइल्ड भी नॉर्मल हुआ, बिकॉज क्या हुआ होगा? द डेवलपिंग फीटस हैज डिराइव्ड मदर्स ब्लड ग्रुप. विच ब्लड ग्रुप? इसलिए वो एंटीबॉडी क्रॉस करके भी जाके आरबीसी पर अटैक आया. सबको समझ में? एवरीवन? ठीक है, ये मैंने बीच में बात एक्स्ट्रा आपको बता दिया. लेट अस मूव अहेड. होगा क्लंपिंग ऑफ फीटल आरबीसी. रिजल्टेंट क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्ट? कॉन्सिक्वेंस. releases hemoglobin in large amount to be degraded into bilirubin. सही बात है. RBC breakdown releases the hemoglobin in large amount to degrade it into, है ना, to degrade into bilirubin. ये चल रहा है होगा. erythropenia followed by anemia. RBC breakdown releases hemoglobin in large amount to degrade into bilirubin in fetal circulation. ऐसा लिखिएगा, in fetal सर्कुलेशन. सही बात है, बच्चे के सर्कुलेशन में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, मतलब अनवांटेडली, जो कि बढ़ना नहीं चाहिए. ऐसा पहले तो आरबीसी नहीं डिग्रेड होना चाहिए, लेकिन हो रहा है ड्यू टू दैट मिसमैच अटेम्प्ट. एंड फाइनली शरीर के अंदर एक मेडिकल सिचुएशन क्रिएट होगा. डेवलपिंग फीटस के अंदर कमजोरी, है ना, ग्रोथ रुकेगा, स्टंटेड ग्रोथ, वो तो सब जो भी है इम्पैक्ट, मेडिकल इम्पैक्ट. लेकिन हम उसको कैसे जस्टिफाई करें? इराइथ्रोपीनिया आरबीसी में फॉल डाउन होगा, फॉलोड बाय एनीमिया. immature RBC erythroblast appears to compensate
इमैच्योर आरबीसी मतलब इतना ज्यादा आरबीसी काउंट कम होता है कि उसकी भरपाई करने के लिए बोन मैरो से अब इमैच्योर जो आरबीसी अब इमैच्योर है अभी वो आना शुरू हो जाता है बाहर. हाउ द नेम हैज कम टू बी इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. बाकी सिम्टोमेटिकली उसको फिर हम हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, येलो बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, है ना. द चाइल्ड टेक्स दी बर्थ विथ जॉन्डिस, नियोनेटल जॉन्डिस, और इवन में स्टिल बर्थ, गर्भ में डेथ हो जाए, इतना कमजोरी आ गया कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया और द इवन द फीटस में, है ना, डेड इन दी जेस्टेशन पीरियड, बर्थ भी नहीं ले पाया. तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि शरीर कितना कमजोर है, बॉडी जो उसको परपिचुएट कर रहा है, मदर बॉडी, वो कितना हेल्दी स्टेट में है, या मेडिकल सुपरविजन सही से मिला कि नहीं मिला, असिस्टेंस, केस को हैंडल करा कैसे गया, बहुत सारी बातें. तो इमैच्योर आरबीसी इराइथ्रोब्लास्ट appears to compensate in the circulation, which even मतलब वो भी which even get lysed. Immature RBC erythroblast appears to compensate in the circulation, which even get lysed मतलब वो भी टूट जाते हैं. तो फीटस स्टेज में इराइथ्रोब्लास्ट इमेच्योर आरबीसी सर्कुलेशन में आके टूटना शुरू, जो आरबीसी थे वो तो टूट ही जाते हैं, प्लस हेंस द नेम, क्या नाम है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस, सिस मतलब ही टूटना, लाइसिस हो जाना, फेटालिस. सिम्टम्स, नियोनेटल जॉन्डिस, absence of growth, अंडरवेट, बर्थ लेते हैं बहुत ही कमजोर और जो है अंडरवेट बर्थ होगा बच्चे का जॉन्डिस के साथ, है ना. येलोइश अपीयरेंस, येलो बेबी सिंड्रोम, और नीचे यहां लिखना है कंटिन्यूशन में, रादर नोन एज HDN, hemolytic disorder of newborn, hemolytic disorder of newborn. Now, let me end up the discussion with a final concluding point. What we have till discussed, it was unknowing. Nature में naturally without any medical supervision हो रहा था, and things have turned out to be worst, the worsened condition what could be. But suppose under the present medical health sector, counseling होती है, ठीक है, और so called couple with that incompatible match, but still they want to enter into that marital relationship.
एंड डेफिनेटली क्योंकि सोशल टर्म्स में बात करें, देयर आर मेनी सच टाइप्स ऑफ अदर इमोशंस व्हिच आर स्ट्रांग ओवर ऑल दीज थिंग्स। भाई प्यार हुआ है उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अरे यस और नो, साथ में जीने मरने की इतनी कस्में खाई है तो अरे देख लेंगे। अरे आ रहा है समझ में। सो मेडिकल साइंस ऑल्सो के तथास्तु गो ऑन। थैंक्स टू दैट इंजेक्शन अवेलेबल कॉल्ड रोगाम डी। इंजेक्शन का कमर्शियल नेम क्या है? It's a serum which contains an artificially prepared antibody, anti-RH antibody या anti-RH। एंटी बोलने के दो तरीके, या तो anti-RH एक ऐसा एंटीबॉडी जो कि anti-RH को एंटीजन की तरह लेते हुए उस पर अटैक कर दे। तो बोलने का क्या तरीका है? anti-RH या फिर anti-RH एंटीबॉडी। तो soon after that case of first pregnancy, इमीडिएटली द फीमेल, पहले तो, अब अगले प्रेगनेंसी तो कुछ समय बाद होगा ना, और ये प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी तो हार्डली 15 दिन काम करेगा, क्योंकि एनी सच इम्यूनाइजेशन इज एन एक्वायर्ड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। दिस इज एन एक्वायर्ड, मदर को ही लगाना पड़ेगा खुद ही। पैसिव मतलब तैयार किया हुआ आर्टिफिशियली, है ना, किसी और जगह से तैयार होकर शरीर को आर्टिफिशियली दिया जा रहा है। This is a question from immunization, from vaccination versus immunization, है ना। all vaccinations are immunization, but all immunizations are not। सबको मेरी बात आ गई समझ में? कुछ देखिए ना, मैं कोई भी चीज ऐसा पढ़ा जाए, मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ते पढ़ते वो सब कनेक्टिविटी में सारी बातें आ जानी चाहिए। हालांकि हम पार्ट 2 जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे इन्हीं बातों को साबित करेंगे, लेकिन आज ही ये पढ़ते हुए जो बात अभी स्टेटमेंट सामने आया, इसको यहीं समझ लिया जाए। Everyone try to understand once again what I have said, कि this is an attempt done artificially, तैयार किया हुआ एक एंटी सीरम जिसके अंदर एक ऐसा एंटीबॉडी है, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर प्रेगनेंसी क्यों दिया जाता है? क्या मैंने कहा था कि बच्चे को तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो जो एक्सपोजर हुआ उसके वजह से जो क्लंपिंग वगैरह होके वाइटली मदर के सर्कुलेशन में कहीं क्लॉटिंग ना हो जाए, क्योंकि कुछ फीटल आरबीसी स्ट्रक्चर के कारण कहां चला जाएगा? मदर बॉडी के अंदर। और मदर बॉडी ने अगले 3-4 दिन में रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि इट वाज अ स्ट्रॉन्ग एंटीजन, बन गया एंटीबॉडी। कुछ दिन महीने भर बाद नहीं, लैक पीरियड ऑफ हार्डली अ वीक, इतना स्ट्रॉन्ग एंटीजन तक कि, और मदर बॉडी बीइंग यंग, मतलब ज्यादा एज भी नहीं और इम्यून सिस्टम स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करने वाला था, कर गया। तो मेडिकल साइंस इसमें होगा नहीं होगा इन सब चीजों में नहीं रहते हैं। आज तैयार है दवाई, हु इज गोइंग टू टेक द रिस्क, इसलिए इंजेक्शन लगा दिया जाता है कि बच्चे का तो बर्थ नॉर्मल हो गया, लेकिन उसने जो मैंने कहा ना सीडेड, जो दिक्कत की बीज अगले प्रेगनेंसी के लिए, हम तो अभी थ्योरेटिकली क्या बात सोच रहे, सिर्फ प्रेगनेंसी, अगले बच्चे को दिक्कत। अरे अगले बच्चे से पहले मदर को भी दिक्कत हो सकती है। बोले मदर को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेसिपिएंट बॉडी के अंदर डोनर का आरबीसी कोआगुलेट होता है। डोनर तो शरीर से अलग हो चुका है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है मिक्सिंग का, और वो फीटल आरबीसी अगले 15-20 दिन तक मदर के कुछ सर्कुलेशन में रह गए और उन आरबीसी पर एंटी आरएच बनकर अटैक हो गया, तो मदर के वाइटल ऑर्गन्स में कहीं क्लॉटिंग हो सकती है, यस और नो। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए सून आफ्टर इमीडिएट, एनसीईआरटी ने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, सबको आ गई समझ में अच्छे से? एवरीवन इतना बड़ा इंजेक्शन नहीं लगाते, मतलब तुम कि देख के घबरा जाओ, बोले अरे ये क्या हो रहा है। रोगाम डी कंटेनिंग एंटी आरएच antibody, and this attempt is simply a type of immunization. It's a immunization, not vaccination. बन गया क्वेश्चन? इतना कुछ पढ़ने के बाद अल्टीमेटली, है ना, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडी टू अ, है ना, आरएच इनकॉम्पैटिबल, है ना, मदर या फीमेल, आरएच इनकॉम्पेटिबल है ना वो अपने कॉम्बिनेशन में, आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी इज एन अटेम्प्ट ऑफ, इज एन एग्जांपल ऑफ
नेचुरल पैसिव यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, वो तो ऑप्शंस बन गए। अब आंसर क्या होगा? आर्टिफिशियल पैसिव। आर्टिफिशियल, तो उसको मैं पूरा लिख रहा हूं, दैट अटेम्प्ट इज acquired artificial passive immunization. और यहां पर देखिएगा, यहां इम्यूनाइजेशन करके मदर को किसी मेडिकल ट्रॉमा से बचाने के लिए, लेकिन अब सक्सेसिव चाइल्ड को हेल्दी बर्थ देने के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ चांसेस, क्योंकि अगर क्या बोलते हैं नेगेटिव के साथ बच्चे ने बर्थ ले लिया तो कोई बात ही नहीं है, वो तो प्रायर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, लेकिन कौन जानता है हु इज गोइंग टू टेक दैट रिस्क, इसलिए दवा है। तो अब ऐसे कपल जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ना केवल एक नॉर्मल बर्थ दिया, बल्कि सक्सेसिव चाइल्ड अगले कुछ समय बाद आफ्टर स्पेसिंग एंड गिविंग अ गैप अंडर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अटेम्प्ट फॉर देयर सेकंड चाइल्ड, तो जब कभी भी वो प्लान करे अंडर मेडिकल सुपरविजन शुड रिपोर्ट द कंसल्टेंट डॉक्टर, है ना, क्योंकि क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी अचीव करने से 3 महीने पहले से इंजेक्शन लगना चालू हो जाएगा। सो कॉल्ड द कपल विल एंटर इनटू एन इंटरकोर्स, है ना, वॉलेंट्रीली टू हैव एन चाइल्ड, दे हैव प्लानिंग, तो उससे भी 3 महीने पहले से मदर को इंजेक्शन लगना चालू हो जाता है। तो द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन इज डन फॉर सच फीमेल 3 months before है ना, 3 months before pertaining to pregnancy. The artificial passive immunization is done for such female 3 months before pertaining to pregnancy. तो ये एंटीबॉडीज सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होते रहेंगे। अच्छा, वो इंजेक्शन लगना पड़ेगा, टेम्पररी है वो, उसको लगाना पड़ेगा हमेशा, हर 15-15 दिन में जो है 6 बार इंजेक्शन लगेंगे, और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी डॉक्टर ब्लड टाइटर चेक करके, वो तो सिचुएशंस हैं, क्योंकि एंटी कुछ लोग एलर्जिक भी होते हैं, वो सिचुएशन भी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जुड़े हैं। तो फिर वही बात है कि कुछ मेरे अपने लिमिटेशंस एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि मैं कोई प्री पीजी की तो तैयारी करा नहीं रहा हूँ, मेरी बात आ रही है सबको समझ में। वॉट एवर, क्योंकि ये एंटीबॉडीज तो बॉडी में जेनेटिकली ड्रिवन सेल्स टी लिम्फोसाइट सॉरी बी लिम्फोसाइट्स बन चुके हैं, उनको तो डेमोलिश नहीं किया जा सकता, तो ये तो बनते रहेंगे थ्रू आउट लाइफ। अच्छा, अब सबको ये आंसर तो देना आता है कि कौन सा मैरिज कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन अगर जस्ट रिवर्स कन्वर्सली पूछ लें कि बाकी सब में क्यों दिक्कत नहीं है, बाकी जो 3 कॉम्बिनेशन है, आ रहा है सबको समझ में? ये कुछ तो सिचुएशन जनरेट होना चाहिए ना, एवरीवन, सबको पहले आ रहा है समझ में? अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये ट्रेडिशनली सबके दिमाग में था कि ये पढ़ना है, ये चीज हमें समझाया जाएगा तो समझ में भी आते जाता है, लेकिन अब उल्टा है। अब मैं क्या कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं, बाकी 3 सिचुएशंस को दोबारा बना के देखा जाए,
इनमें कभी एंटीबॉडीज बनेगा ही नहीं। आया समझ में? एवरीवन सेम ओवर हेयर। बस इसमें और अगले में डिसाइड करने वाली बात है, यस और नो। अब आप देखिए आर एच नेगेटिव वही 72%। अब इस प्रेजेंटेशन को ऐसे एग्जिबिट कर रहे हैं कि ये रहा मदर बॉडी और ये रहा अंदर फीटस। और देखिए क्वेश्चंस तो फिर ऐसे ही बनते हैं, है ना, केवीपीआई का क्वेश्चन। अरे आया समझ में? कोई भी टॉपिक हो, क्वेश्चन कैसे आएगा, टॉपिक्स तो वही रह जाते हैं, लेट क्वेश्चन का स्टेटस क्या है। तो मैं अक्सर आपको ये जो डायग्राम्स, प्रेजेंटेशंस, कंटेंट्स, लैंग्वेज की जो मैं बात करता हूं, बायोलॉजी नीड्स दैट। तो अब ये तुम फिजिक्स का कैपेसिटर मत समझ लेना। कुछ लोग तो बोलेंगे अरे ये क्या मजाक है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ाने के बाद मतलब क्या है, डू नॉट लव द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टीचर, लव योर एम। मैं पहले दिन ही क्लियर कर देता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे क्या है, सब्जेक्ट पे गोता लगाने चले जाते हैं, है ना, गोता समझते हो ना, ऐसा बिल्कुल गहराई। अब मैंने पढ़ाया क्लास में ये स्पॉम्स ये वो है ना, एक बच्चे सर, है ना, वो भी 3 इडियट्स का वही आमिर खान बनने की कोशिश कर रहा, सर मैंने कहा बेटा बोल बोल। अरे आ गया समझ में? तो वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन था उसका कि सर जब एक ही स्पर्म की जरूरत है तो इतने सारे स्पर्म्स की जरूरत क्या है। अरे वाह, तो मुझे बिल्कुल 3 इडियट्स का वो सीन याद आ गया कि सर वो पेंसिल से काम चल सकता था तो इतना महंगा पेन बनाने की जरूरत क्या पड़ी। अरे कुछ आया समझ में? हाँ तो ठीक है। अच्छा हद तो और पार कर दी, मतलब देखो, मतलब एक तो करेला चढ़ा हुआ ऊपर से नीम भी चढ़ा आता है, फिर देखो। और सर वो यूट्रस में स्पर्म्स ऐसे जा रहा है तो ऐसे कैसे चलाएगा, नीचे से ग्रेविटेशनल पुल। अरे तो मेरे को उसी दिन समझ में आ गया कि तू वाकई में E2 बैच में पढ़ने लायक है। अरे आया समझ में? बिकॉज हाउ कुड आई आंसर इट। अरे आ रहा है समझ में, मतलब वो अच्छा वो उसी बैच में पढ़े, या क्योंकि नहीं 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 ठीक है बस। समझ गए ना तुम लोग? तुम्हारे मन में तो ऐसे हिचकोले नहीं आते ना। ये मैंने क्या बनाया है, एक आर्बिट्री प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, या फिर M फॉर मदर बॉडी एंड फीटस। और ये रहा वो प्लेसेंटा यानी ट्रांसप्लेसेंटल बैरियर, ठीक है, जो कभी मिक्सिंग होने नहीं देगा। आया सबको समझ में? एवरीवन सबको आ रहा है समझ में? इन दोनों का आंसर तो आपको मिल ही गया है इस सिचुएशन, और क्योंकि फोर्थ सिचुएशन तो ऑलरेडी इतना कुछ हम देख चुके हैं, तो पूरे प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये मैच होने नहीं देगा, उसको मिक्सअप नहीं होने देगा। और फिर उसके बाद जो है द कंडीशन इज कि बच्चा जब बर्थ लेगा, जो रप्चर होके मिक्सिंग भी होगा, तो मैटरनल ब्लड कभी भी बच्चे में नहीं जा पाता है। हाँ, फीटल ब्लड मिक्स होके मैटरनल बॉडी में आया सबको समझ में? बस सो एंड मोर ओवर द बॉडी इज आउटसाइड, फीटस इज आउटसाइड विदाउट बीइंग ट्रिगर्ड, विदाउट बीइंग, बात खत्म, हेंस नो प्रॉब्लम। सबको आया समझ में? अब ये मैंने आपको ऐसे समझाया, ये तो एक क्वेश्चन बनेगा और उसमें किस लैंग्वेज में ये बात लिखा होगा, अब ये आपकी खुद का सेल्फ एप्टीट्यूड है कि उस सिचुएशन को समझ के, लैंग्वेज को समझ के। मैंने तो अपना काम कर दिया है। सबको आ रही मेरी बात समझ में? तो ये आप यहाँ से सीख के जाते हैं, है ना, सब कुछ सिखाया जा सकता है बट एवरीथिंग कम्स विद सम टाइम, और टाइम ही तो है जो हम उतना पूरा दे नहीं पा रहे, दैट्स अ फैक्ट लिमिटेशन। तो कोई भी टॉपिक है वो तो पूरा पढ़ो, तो जितना पूछोगे और चीजें आगे बढ़ते हुए और सबका आंसर से, बट वी हैव टू डिसाइड कि कितना पढ़ा जाए जिससे मोस्ट सार्कास्टिक क्वेश्चंस जो बन सकते हैं एटमोस्ट जाके, वो हमारा कवर होता रहे पूरे एक्सप्लेनेशन में। एवरीवन क्लियर?
तो ये प्रेजेंटेशन आप बना लीजिए और अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए जो मैंने बात बताई है। एवरीवन वेल क्लियर विद द टॉपिक? तो बिफोर आई मूव अहेड, अब मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं ब्लड कोआगुलेशन। अभी शुरू करके मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं कोई दूसरा एक टॉपिक इसी चैप्टर का कंटिन्यूशन इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर रहा हूं, जो अगले 45 मिनट में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास ब्लड कोआगुलेशन क्या है? ब्लड कोआगुलेशन तो 20 मिनट का टॉपिक है, लेकिन मैं पूरा हीमोफीलिया तक पढ़ा दूंगा। सबको आ रहा है समझ में? एवरीवन, मतलब जिस दिन 12th के पोर्शन में पहुंचेंगे, आंख पढ़ते हुए कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा दूंगा, हीमोफीलिया है ना, डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ते हुए फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, गैलेक्टोसीमिया सब कवर कर देंगे, क्योंकि सब सेक्स क्या बोलते हैं, सब ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। कैसे हैं? कुछ सेक्स लिंक्ड है और कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव। उस दिन तो बस ये है म्यूटेशंस, इतने टाइप्स, और फलाने म्यूटेशन से बॉडी में इस कैटेगरी का ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। आपको पूरे कोर्स में 2 जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना है, क्रोमोसोमल एंड जीन। क्रोमोसोमल भी स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल, क्योंकि क्रोमोसोम खुद 2 तरह के होते हैं, ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोमल। दोनों कैटेगरी में आप पढ़ोगे स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल, बीमारियों के नाम और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो अल्टीमेटली एक ही कारण से होते हैं, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस जितने भी न्यूमेरिकल हो, चाहे सेक्स क्रोमोसोमल हो चाहे ऑटोसोमल, यानी डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड मार्फन सिंड्रोम, जितने भी हैं वहां से, और यहां से जो है आपके क्लाइनफेल्टर, टर्नर, सुपर मेल, सुपर फीमेल, करीब ये 8-10 ही हैं जो पढ़ने, बस उनके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, उनका क्या कैरियोटाइप होता है और क्या होना चाहिए था। क्वेश्चन बनने के लैंग्वेज। सबको आ रही मेरी बात समझ में? तो उस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो प्रेजेंटेशन में वहां करूंगा, लेकिन उनका जो बेसिक कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट, इन चैप्टर्स के साथ ही कवर हो जाएगा। जैसे आपसे कुछ समय पहले ही आपने देखा था, मैंने आपको आरबीसी का डायग्राम बनाते हुए स्ट्रक्चर और सब कुछ, यस और नो, याद आ रहा है सबको? हीमोग्लोबिन केमिस्ट्री पढ़ा दी, एक लेवल तक ऑक्सीजनेशन, क्योंकि एनसीईआरटी अगर इस चैप्टर कह रहा है कि ब्लड प्लेज रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ आरबीसी, जिसमें एक यूनिवर्सल पिगमेंट हीमोग्लोबिन मौजूद है, ऑफरिंग दैट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, वही मैंने साबित किया, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। क्या कहते हैं? एन ऑक्सीजेशन इज नॉट बाइंडिंग, सॉरी नॉट बॉन्डिंग, इट्स अ बाइंडिंग प्रोसेस, एफिनिटी, एक लगाव है जो केमिकल लेवल पे सिचुएशन जनरेट होता है फॉर ईच अदर अंडर सम केमिकल सिचुएशन। व्हाट इज दैट केमिकल सिचुएशन विच इज बीइंग ऑपरेटिंग एट 2 levels ऑफ द बॉडी? व्हाट आर दोस 2 levels? ब्लड, एल्वियोलाई, ब्लड, एंड बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, टिश्यू ब्लड के बीच बोहर्स इफेक्ट, ब्लड और एल्वियोलाई के बीच हेल्डेंस इफेक्ट। इस दोनों इफेक्ट को 2 ट्रांजिएंट सिचुएशन पे समझना विद अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, विद अ rather termed and defined as oxyhemoglobin curve। क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कर्व, जो अपना राइट और लेफ्ट हैंड शिफ्ट से बॉडी के सिचुएशन को एग्जिबिट करते हैं, एंड देयर बाय गिविंग P50 वैल्यू टू द बॉडी, गिविंग, जो अगर शरीर में बढ़ रहा है, इट्स अ साइन ऑफ डिसऑर्डर, इट्स अ साइन ऑफ कि बॉडी इज अंडरगोइंग सम आइदर स्ट्रेस, या कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर भी अगर P50 वैल्यू बढ़ रहा है तो वो डिसऑर्डर है फिर, क्योंकि प्लेन एरिया में भी खड़े होकर P50, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड बढ़ते हुए ऊंचाई किसी स्ट्रेसफुल काम के साथ बढ़ना ठीक है, क्योंकि शरीर उसको एक्लिमेटाइज कर लेगा, फीडबैक में बैकअप से कवर कर लेगा कुछ समय बाद। दिस इज होम्योस्टेसिस, दिस इज, हर सिस्टम अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा, अपने P50 वैल्यू को मीट आउट नहीं कर पा रहा है, नाउ दैट साइन ऑफ डिसऑर्डर। और उसको क्रॉस चेक करने के लिए सारे वो वॉल्यूम्स, कैपेसिटीज होते हैं, एंड द रेफर्ड डिसऑर्डर्स आर आइदर सफरर ऑफ अस्थमा, एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस। वो तो फिर वही क्लिनिकल एप्लीकेशंस, कैसे डायग्नोस करते हैं इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखकर। सबको मेरी बात आ रही समझ में एवरीवन? लेकिन थ्योरी क्या कहता है? थ्योरी में एक एक बात, एक एक लाइन एक्चुअली क्या रिवील कर रहा है, वो दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं डील करना है, वो तो सीखोगे उस प्लेटफॉर्म पे जाके, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए आपका लैंग्वेज थ्योरी कितना स्ट्रांग होना चाहिए, दैट्स अ साइन ऑफ योर मेंटल एबिलिटीज। एवरीवन क्लियर? तो ये था प्रेजेंटेशन, और आज मैं डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट पूरा डायग्राम बनाकर आर्टरी, वेन और कैपिलरीज की हिस्टोलॉजी अभी कवर कर दूंगा आधे घंटे में। एवरीवन सबको आ रहा है समझ में? मतलब चैप्टर का एक हिस्सा है पूरा प्रेजेंटेशन, और आर्टरी वेन के डिफरेंसेस, क्वेश्चन उस पर भी आते हैं।
एक बॉडी के इस पार्ट में ब्लड को ऐसे हार्ट से ऑर्गन तक जाना है, तो बताइए किस तरह का आर्टरी या एक ब्लड वेसल इन्वॉल्व है जिसके लिए ये स्टेटमेंट है, तो बताइए वो क्या होगा, वेन है कि कैपिलरी की आर्टरी है? क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं, जैसे अभी अभी आपके सामने मैंने बनाया ना एक प्रेजेंटेशन। एक फाइनल टच टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ओरिएंटेड। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, डायग्नोसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन लैब। है ना, दीज आर दी एंटी सीरम आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सस्पेंशंस। स्कूल में भी आपने एक्सपेरिमेंट किया ही होगा, ठीक है ना। रेड कैप ब्लू कैप रहता है, फिक्स्ड है। रेड कैप में अल्फा एंटीबॉडी सीरम रहता है, ब्लू कैप वाले क्या बोलते हैं शीशी में जो है उसमें एंटी यानी एंटीबॉडी बीटा रहेगा, और येलो कैप में एंटी डेल्टा यानी एंटीबॉडी डेल्टा रहेगा। whoever the person who is going through the examination of his blood group, his or her blood group, उसके बॉडी से जो सैंपल लिया जाता है ना, 3 ड्रॉप ऑन अ स्लाइड, एक ही व्यक्ति के तीनों ड्रॉप्स होंगे, ये 3 व्यक्तियों के नहीं होंगे। अरे आया समझ में? द सैंपल शुड बी फ्रॉम द सेम पर्सन, 3 ड्रॉप प्लेस्ड इक्वी पोजिशन डिस्टेंस पे ग्लास स्लाइड पे रख देते हैं, और पहली बार कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट तो मार्किंग कर लेते हैं कि कहाँ ए, यहाँ परमानेंट मार्कर से ए बी लिख देने का कारण है, और डी आरएच फैक्टर पता लगाने के लिए साथ में, ठीक है। तो यहां पर क्या ऐड करेंगे इस ड्रॉप में? अल्फा एंटीबॉडी। तो अगर ए ब्लड ग्रुप होगा, ए के लिए कौन सा एंटीबॉडी होता है? एंटीजन अल्फा। बी एंटीजन के लिए कौन सा एंटीबॉडी होता है? बीटा। और आरएच फैक्टर अगर है तो उसके लिए कौन सा एंटीबॉडी है? वही एंटी आरएच, जिसको एंटीबॉडी डेल्टा करके यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं एवरीवन। अब देखिए, है ना, लेट मी मेक द इंडेक्स। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। पॉजिटिव मतलब क्या होगा? हीमोलाइसिस, और नेगेटिव मतलब नो हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस होना या ना होना। यहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां हीमोलाइसिस नहीं हुआ, यहां हुआ, दोनों में हीमोलाइसिस हुआ, दोनों में हीमोलाइसिस नहीं हुआ। यहां तो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो रिजल्टेंट ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी एंड ओ, लेकिन साथ ही साथ ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। आया सबको समझ में प्रेजेंटेशन? एवरीवन, diagnosis of blood group in laboratory condition where as reagent as an antiserum having 3 differential colored caps, red with alpha antibody, yellow with delta, and blue with है ना beta antibody. A person subjected to the cross examination of blood group, sample being collected as 3 drops distantly placed on a glass slide marked as A, D and B. ओके, एंड फाइनली यहां अल्फा ऐड किया, यहां डेल्टा आरएच के लिए किया, और यहां बीटा। हीमोलाइसिस हुआ तो ए ब्लड ग्रुप है, यहां नहीं हुआ यानी बी ब्लड ग्रुप नहीं है। आरएच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब आफ्टर 5 मिनट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस स्लाइड को बारी बारी से देखा जाता है।
तीनों जगह। यहां हिमोलाइसिस है, यहां है ए पॉजिटिव, यहां हिमोलाइसिस है, यहां हिमोलाइसिस ए नेगेटिव, यहां हिमोलाइसिस नहीं है, यहां हिमोलाइसिस है और यहां भी हिमोलाइसिस है बी पॉजिटिव, यहां हिमोलाइसिस है, यहां हिमोलाइसिस नहीं है बी नेगेटिव। सबको आ रहा है समझ में? क्वेश्चंस कैसे बनेगा वो एक अलग बात है, खुद के पढ़ने का ये तरीका है, और फिर वो तो क्वेश्चन जब बनेगा सामने देख के आपको अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करना है। एवरीवन, सबको आया समझ में? और क्योंकि दोनों ही सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, नो हिमोलाइसिस, लेकिन यहां हिमोलाइसिस हुआ है तो ओ पॉजिटिव, यहां भी नहीं हुआ है, कहीं हिमोलाइसिस नहीं हुआ, ओ RBC status with tonicity of blood. If I say the jar A, B and C respectively are hypertonic, बीच में आइसोटोनिक और ये हाइपोटोनिक। अगर मैं हाइपरटोनिक कह रहा हूं तो व्हाट इज दिस सिचुएशन? सॉल्यूट मोर, सॉल्वेंट लेस, ठीक है? तो क्या होगा यहां पर? एक्सो ऑस्मोसिस। क्या होगा? तो आरबीसी श्रिंक, आरबीसी श्रिंक एंड कोलैप्स। इस इवेंट को कहते हैं क्रिनेशन। क्या कहते हैं? क्रिनेशन। पहले वाले केस में क्या होगा? अच्छा, व्हाट इज द एक्चुअल टोनिसिटी? टोनिसिटी ऑफ आरबीसी इन ब्लड इज, बाहर मौजूद प्लाज्मा में सोडियम का लेवल 0.9 ग्राम पर 100 ml। हर 100 ml ब्लड में 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, सॉल्ट। ये आइसोटोनिक है, मतलब अंदर बाहर बराबर, मोरलेस बराबर इतना, ये आइसो। तो सिचुएशन क्या होगा यहां पर? मोर देन 0.9%, मोर देन, हेंस इट इज हाइपरटोनिक। तो क्या होगा? पानी बाहर, एक्सॉस्मोसिस होगा, श्रिंक करके कोलैप्स करेगा। द इवेंट इज कॉल्ड क्रिनेशन। यहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन हाइपोटोनिक मतलब लेस देन 0.9% डिस्टिल्ड वाटर। कैसा वाटर? या फिर टैप वाटर।
तो एक व्यक्ति को 1 लीटर जो है डिस्टिल्ड पानी पिला दिया जाए, क्लियर? तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? ब्लड विल बिकम हाइपोटोनिक, विल बिकम, यानी सॉल्वेंट ऐड कर दिया ना, बाहर क्या होगा? सॉल्यूट तो जो भी था, लेकिन अब उसका ऑस्मोलैरिटी कम हो गया, ऑस्मोलैरिटी कम हो गया है क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा हो गया। तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया था कि 1 लीटर पानी पिला देने पे आरबीसी भी कोलैप्स करेगा और यूरिनेशन बढ़ जाएगा, यस और नो? तो सॉल्यूट डिक्रीज, सॉल्वेंट इंक्रीज, हाइपोटोनिक कंडीशन, रिजल्टेंट क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस। क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस। आरबीसी बर्स्ट एंड कोलैप्स। कोलैप्स तो दोनों ही सिचुएशन में होगा, लेकिन बर्स्ट करके फूट जाएगा वो, एंडोऑस्मोसिस। तो जब हम चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, डीप सी सिकनेस, क्या पढ़ेंगे? हाई एल्टीट्यूड सिकनेस एंड डीप सी सिकनेस। तो डीप सी सिकनेस में यही हो जाता है, या कोई व्यक्ति जब ड्राउनिंग होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या हो जाता है? उसके शरीर में जो है पानी पी पी कर जो है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर, बताएंगे केसेस फॉरेंसिक में कैसे डिसाइड होता है कि डूब के मरा कि डुबो के मारा उसको, सेल्फ ड्राउंड हुआ है कि उसको ड्राउनिंग कराया गया है, केस बनाया गया, मतलब, है ना? तो हाउ इट इज बिंग डिसाइडेड एट द फॉरेंसिक टेबल? क्या हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट होता है? फिलहाल अभी आप तो इस आरबीसी बर्स्ट एंड कोलैप्स, क्लियर? सिंगल सर्कुलेशन, जहां गिल्स एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस और बॉडी टिश्यूज के बीच ब्लड गुजरता है इन अ सिंगल सर्कुलेशन बट पासेस थ्रू हार्ट ओनली वंस। आया सबको समझ में? एवरीवन? एंड द हार्ट रादर टर्न आउट टू बी वेनस because indeed it receives deoxygenated blood only. Which blood?
क्योंकि डायरेक्टली उस गिल्स और कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो भी है वहां से बॉडी टिश्यूज की तरफ पहुंच जाएगा. दैट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल सर्कुलेशन इन क्लोज्ड BVS. Next, we are interested now in understanding double circulation. So, concept of double circulation revealing the participation of heart with four chambered condition, systemic heart, where the blood passes twice through the heart during one single circulation, beginning from the body tissue and to end up to the body tissue. तो ये एल्विलर सरफेस है लंग्स का फंक्शनल एरिया. और बॉडी को अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें तो डबल सर्कुलेशन खुद डिवाइडेड है between heart and the body other system, representing the systemic circulation, representing the greater part, whereas the other part between heart and lungs is the pulmonary circulation, representing the lesser pathway. ये greater pathway और ये lesser. And the whole double circulatory system itself is having two parts: venous system
एन आर्ट्रियल सिस्टम, है ना, हार्ट, ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड बॉडी ऑर्गन्स, that is arterial system. Again, body, heart and the veins, blood vessels, deoxygenated blood. तो इस हिस्से में हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड मूव करता है और इस हिस्से में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. प्योर इम्प्योर वर्ड अब आप हायर क्लास में इस्तेमाल नहीं करेंगे. ब्लड इज नॉट प्योर इम्प्योर, इट्स ऑलवेज इट्स हैविंग कॉम्बिनेशन. वो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको लोअर क्लासेस में प्योर इम्प्योर करके पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी. तो डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड. Now in this diagram, one thing to be highlighted, which is an exception to the concept of double circulation, and that's the part of human double circulation, venous system. That unique bypass pathway is called as portal system. Between any organ number 1 and organ number 2, and the vein will be called as portal vein. Similarly, एक ऐसा ही बाईपास पाथवे यहां कहीं ऑपरेट करता है. देखिए ये तो एक डायग्रामेटिक बस प्रेजेंटेशन है फॉर क्विक रिवीजन. रोज रोज कहां लिटरेचर पढ़ते रहोगे, बस याद करने का तरीका है. एंड इट इज द पार्ट ऑफ आर्टरियल सिस्टम. ये वेनस सिस्टम का हिस्सा और ये, एंड दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन. कैसा सर्कुलेशन है? अब ये क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए वहां पर बता देंगे. और लीडिंग टू डिसऑर्डर्स, है ना, कोरोनरी आर्टरियल डिजीजेस, कैट डिजीजेस, कोरोनरल आर्टरियल डिजीजेस वहां देख लेंगे. बाकी ये तो डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट था. व्हाट डज इट मीन, उसका माय प्रायर प्रेजेंटेशन. और फाइनली व्हाट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इज नाउ कि मैं बॉडी के किसी भी एरिया से एक आर्टरी और किसी भी एक एरिया से वेन कट करके निकाल लें तो हिस्टोलॉजिकली व्हाट आर नाउ दीज ब्लड वेजल्स आर. ये कंसेप्ट सबको आ गया समझ में एवरीवन? एक बुक दीजिएगा मुझे.
पेज नंबर 282 सर्कुलेटरी पाथवे के बाकी सारे एस्पेक्ट्स पढ़ा दिए थे सिंगल डबल के कंसेप्ट के साथ। इफ यू मूव टू पेज नंबर 286, आज घर पे जाके आप ये पैराग्राफ पढ़िएगा एंड देन कोलैबोरेट विद दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, स्पेशली दिस वन। So I have completed all those aspects, but to continue with that, what are those three blood vessels? You could see किसी भी capillary bed से capillary और arteries, veins तीनों को compare करेंगे तो उनकी characteristics, correct incorrect statement regarding their behavior to act as a pathway to conduct the blood throughout the body, जिस तरह की भी क्वेश्चंस बनते हैं, और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ उनकी खास यूनिक हिस्टोलॉजी, क्योंकि आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट रिलैक्स कर सकते हैं बट वेन्स डजंट, व्हाई सो? तो उसका आंसर हिस्टोलॉजिकल रीजन है। बाकी ब्लड के अंदर मौजूद जो खास ब्लेसोफिल्स हैं, दे प्रोड्यूस दोस टू रिस्पेक्टिव हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जो आर्टरीज पे काम करते हैं, वेन्स पर नहीं। और टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेन इज इट हैज गॉट वाल्व्स, इट हैज गॉट, जो कि आर्टरीज में नहीं होते हैं, बट एक्सेप्शंस आर देयर अगेन। मैंने बात तो अपना सही बोला है, बट क्वेश्चन भी तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी ऑफ आर्टरी इज, है ना, इज अनएक्सेप्शनल, इज एक्सेप्शनली, मतलब उसमें कोई और एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता कि वेन में भी पाया जा सकता है बशर्ते, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है। तो उन्हीं बातों के लिए ये लिटरेचर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इट्स नाउ टाइम आउट, आई हैव टू कैरी विद द हिंदी मीडियम इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। सबको पहले यहां तक क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्लास ऑल यू आर रिक्वेस्टेड टू पाइल अप इन द क्लास बाय 8:30, जिससे मैं एकदम शार्प 8:30 स्टार्ट कर सकूं। 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं, ठीक है ना? तो मैं आके स्टार्ट कर दूंगा 8:30 बजे, ठीक है। तो ये आधे घंटे में हो जाएगा, ये तो बस डायग्राम बना के पॉइंट्स लिखवा के, देन वी विल गो विद ब्लड कोआगुलेशन। वो तो 15-20 मिनट का टॉपिक है, लेकिन उसके बाद मैं हीमोफीलिया टाइप्स, जेनेटिक्स के सारे क्वेश्चन, और मेरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट हार्ट का स्ट्रक्चर, मतलब ह्यूमन, क्योंकि टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट, सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंगली टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट। चाहता तो ये ना बनाकर मैं एक्चुअली इसके बाद ये लिख बना देता, लेकिन ठीक है, ह्यूमन हार्ट शुरू करने से पहले टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट बना के, और उसमें स्पेशली एक्सेप्शंस कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कभी कभी आर्बिट्री क्वेश्चंस बनते हैं उसके डायग्राम बना के कि बताइए गिवन में से एम्फीबियन हार्ट कौन है, इस तरह से। तो कुछ उस तरह का प्रैक्टिस मुझे कराना है। थैंक यू।